my dear students. I hope you all are fine and doing well. See, permutations and combinations we have already started. Now only two concepts are there. One is permutation of the objects when all are not different. मतलब कि एक जैसे चीज़ें कई बार आ जाती हैं, जैसे लाइक आई कैन से वर्ड मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, एम की डबलिंग हो जाती है, TB की डबलिंग हो जाती है. दिस काइंड ऑफ permutation, and another is circular permutation, which is very important. So today I will do these two kind of permutations, and I hope you will understand it and you will be able to finish the exercise. Okay, so children, today I am going to take permutations when all the objects are not different. All the objects are not different. Like, see, let me take an example. If I write again, AGAIN. If I write again, here see, A comes two times. Now, what will be total number of permutations of this word? Taking all together, what we have to do? 1, 2, 3, 4, 5. 5 factorial upon this repetition a 2 times, we have to divide it by 2 factorial. Then what? 5 factorial upon 2 factorial will be the answer. So I am going to take this kind of question. See, when n objects, the number of permutations of n objects taken all together, when p objects total, what is the concept? If there are total objects is equal to n, p of one type, q of other type. So what will be the total permutations if all letters taken together? The answer will be n factorial upon p factorial into q factorial. और अगर r of another type, r फिर 3 टाइप के भी होंगे तो आप क्या लिखेंगे? r factorial p 1 टाइप के हैं, q another टाइप के हैं, and r of one more other type. So this will be the arrangement. This is the concept behind these questions. Means जो भी repeated होगा, you have to divide by its factorial. जो भी लेटर या ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड है उसके फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग इज व्हाट इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ वर्ड मिसिसिपी. व्हाट इज दिस? MISSIPPI Mississippi can be arranged when 4 eyes do not come together. 4 eyes do not come together. What? Do not come together. This is the first question. All right. Do not come together. क्या करना है? What are the total number of arrangements if all the letters of word Mississippi taken together when all eyes do not come together? So what will you do? See, look here, eyes do not come together. हम क्या करते हैं? पहले write total number of permutations of of this word Mississippi. How many letters are there? See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. This will be 11 factorial upon 4 times I, 4 times S, 4 factorial into 2 times P into 2 factorial. This will be the total number of arrangements. Alright. Now what I will do? All eyes come together. हम किसके बनाते हैं? Eyes come together when all eyes
come together, when all i's come together, इसके बनाते हैं. देखो हम क्या लिखेंगे, M I, चार के चार आई एक साथ लिख दिए. देन S I can write and a P. Now make a group of this. इसका क्या बना दिया, ग्रुप. हाउ मैनी टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विल बी देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसके अरेंजमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ परमिटेशंस 8 फैक्टोरियल अपॉन व्हाट, अपॉन होगा ये S 4 टाइम्स है, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. दिस विल बी व्हेन ऑल आईज कम टुगेदर. अब इसके अंदर आई के भी बनते, होता क्या, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल ही हो जाता है. दिस इज आईज कम टुगेदर. अब आईज डू नॉट कम टुगेदर के लिए क्या करोगे, आईज डू नॉट कम टुगेदर के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करने का पड़ेगा. दिस माइनस दिस, आप क्या करोगे, यू विल सब्ट्रैक्ट इट. हाउ विल यू सब्ट्रैक्ट, सी आप क्या लिखोगे, आईज डू नॉट कम टुगेदर, आईज डू नॉट कम टुगेदर, डू नॉट कम टुगेदर, जो आपको आंसर चाहिए था. दिस विल बी 11 फैक्टोरियल. ये दिस वन, इसे कैलकुलेट कर लो, ये कैलकुलेट हो जाता बड़ी आसानी से. यू कैन कैलकुलेट दिस. दिस इज 10 इंटू, ये बचेगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, इतना बचेगा. दिस माइनस आप इसे लिख देंगे, ठीक है, इसको लिख देंगे. तो द आंसर विल बी व्हाट, दिस विल बी 34650 माइनस इसका आ जाएगा आपके पास 840. सो दिस विल बी द आंसर व्हेन आईज कम टुगेदर का. तो ये है और ये है आईज डू नॉट कम टुगेदर. नाउ सी चिल्ड्रन, लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. It is, in how many ways letters of word permutation can be arranged such that there are so many parts, right? So I'll do the first part, no restriction. What is written, permutation, it is PERMUTATIONS. This one, permutations. Look at this. There is, first part is there is no restriction. No restriction means count these total. इनको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 factorial upon what is repeated, t is repeated, t 2 factorial. 12 factorial upon 2 factorial is the answer. थोड़ा सा इसको you can calculate, 12 into 11 factorial upon 2, this will become 6 into 11 factorial. This is the answer of first part. The second part is P comes before S. Very important. P comes before S. P को पहले आना है, S को बाद में आना है. P comes before S. Like in this, P is before S. तो ऐसे all the permutations arrangement you have to find when P comes before S. It is very important, children, to understand that total number of arrangements is 6 into 11 factorial. Then in half of the arrangements P will come before S. P will come before S half of total arrangements, and in half of the arrangements P will come after S. ये हर लेटर के लिए होगा. सपोज इफ आई टॉक अबाउट M एंड N, अगर मैं M और N के लिए भी बात करूं तो इट विल बी सेम. टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी दिस इज, एंड इन हाफ द परम्यूटेशंस, दिस वन, half of the permutations M will come before N and the other half M will come after N. ये हर लेटर के लिए this rule will be followed. Then the third part, if you come to the third part, it is the words start with P and end with S. The words start with P and end with S. बहुत ही आसान है.
आप क्या करोगे, P एंड S, ये ऑल दीज वर्ड्स P एंड S, इनको फिक्स कर दीजिए. हाउ मैनी लेटर्स आर देयर, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर फॉर अरेंजमेंट, हाउ मैनी विल बी देयर, देयर विल बी ओनली 10, क्योंकि ये दो तो आपने फिक्स कर देंगे. P एंड S लिखेंगे, बाकी सबको आप इनके बीच में अरेंज करेंगे. ऑलराइट, P एंड S जो है सबके लिए ऐसे ही जाएंगे. सो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, टीज कम टुगेदर. ये तो बहुत आसान है. टीज कम टुगेदर में व्हाट विल यू डू, टीज कम टुगेदर में यू विल राइट बोथ द टीज टुगेदर. देखो, टीज कम टुगेदर, टी टी ये हो गया, और अब पी, ये बाकी बचे ई आर एम यू ए आई ओ एन एस, ये हो जाएगा ना. नाउ सी काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. टोटल हाउ मेनी लेटर्स आर देयर टू अरेंज, 11. तो द अरेंजमेंट्स विल बी 11 फैक्टोरियल. अपॉन में कुछ नहीं होगा क्योंकि कोई भी रिपीटेड नहीं है. इनटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि जो ये टी है इसके अंदर 2 फैक्टोरियल बनते, लेकिन दो के दो रिपीटिशन में था, वो कैंसिल आउट हो जाएगा. यू विल राइट 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट विल बी द आंसर. एंड all vowels come together, again a very good part, all vowels come together. See, try to understand vowels का. now you have to make a group. इसमें ना सारे vowels होते हैं. let me tell you, देखो P लिखोगे, E E U A I O, इसमें A E I O U सारे vowels आते हैं. परम्यूटेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें all vowels will be there. now write R M, fine, T, फिर से T है, एंड N है, और S है. 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. कितना आएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. तो ये अरेंजमेंट हो जाएंगे. इनटू 5 फैक्टोरियल इसके ए ई आई ओ यू के जो इसके अंदर बनेंगे वो होंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है कि देयर आर एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S. देखो हमने क्या लिखा है, द लास्ट पार्ट इज when there are exactly 4 letters between P and S. So see, look here, what I have done, I have given the position. ठीक है, इनको 1 2 3 करके 12 पोजिशन आप दे दें. देन इससे क्या होगा, इससे ये होगा, फर्स्ट में अगर P है तो देर आर 4, 1 2 3 4 लेटर्स विल बी देयर. देन S लिखोगे, अब TATION ये आ जाएगा. इफ P इज इन फर्स्ट, देन व्हाट, S इज एट 6 पोजिशन. तो इसके टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगे. P और S तो आपके फिक्स हो गए, ये तो अरेंजमेंट में जाएंगे नहीं. देन रिमेनिंग 10 फैक्टोरियल अपॉन कितना, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि अरेंजमेंट अब इसी के होंगे. नाउ इफ P कम्स, अब P को अगर P यहाँ पर आता है, दिस इज वन केस. केस नंबर 2, देखो P अगर सेकंड में आएगा, P सेकंड में आएगा, यहाँ P आ जाएगा, सेकंड पोजीशन है ये, तो S कहाँ जाएगा, 7th में. S यहाँ चला जाएगा. ठीक है, P यहाँ आया तो S यहाँ चला गया. दिस इज नंबर 2. यहाँ भी इतने केसेस होंगे, सेम केस होगा. एंड P कम्स, जब P यहाँ पर जाएगा, P कहाँ जाएगा, ये थर्ड केस बनेगा. P थर्ड पोजीशन में है, ऐसे आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. S विल बी इन 8th, यहाँ ऐसा आएगा. अगेन सेम. फिर फोर्थ कंडीशन में P इधर आ गया, ये P की पोजीशन हो गई, तो ये S की हो जाएगी. ठीक है, एंड फिर से सेम. फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में अगर P यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये 12 तक जाएगा, P आ गया. अब आपके देखो 1 2 3 4, ये 4 था, P फिफ्थ में आ गया,
P यहाँ पर आ जाएगा तो S कहाँ चला जाएगा, S यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अगेन सेम, अब P सपोज जिस समय P यहाँ पर आएगा, S कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा 6, और जब P इधर आ जाएगा तो S कहाँ जाएगा, S यहाँ जाएगा, दिस इज 7। तो टोटल ऐसे केसेस हो कितने गए, जबकि P पहले, P इज बिफोर S and there are exactly 4 letters between P and S. This is 7 into how much, 10 factorial upon 2 factorial. अब है क्या, P is before S, ऐसे ही 7 more cases will be there जबकि S पहले आएगा और P बाद में आएगा, क्योंकि ये तो P पहले S बाद में था, S पहले P बाद में आएगा, तो 7 और केसेस आएंगे। तो टोटल योर आंसर विल बी इंटू 2। 2 क्यों होगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही केसेस किसके आएंगे, एस के आएंगे, ये पी के हैं और इतने ही 7 केसेस आएंगे एस के। तो दिस इज अबाउट परम्यूटेशन विद रिस्ट्रिक्शन। सो लुक हियर, सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या है, इफ देयर आर n ऑब्जेक्ट्स, n ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको एक सर्कल में ऐसे बैठाना है, इस सर्कल में, तो देयर विल बी n-1 फैक्टोरियल वेज। अगर स्ट्रेट लाइन में बैठाना होता है तो n फैक्टोरियल होता है, एंड इफ यू वांट टू मेक देम सिट इन अ सर्कुलर टेबल, n-1 फैक्टोरियल। See, there is a very good application of this circular permutation, making of necklace. Necklace of different colors can be formed. हाफ होगा, अब नेकलेस के लिए हाफ क्यों होगा मैं आपको बताऊं। नेकलेस में क्या होता है, आप क्या करते हैं उसको, जैसा एक साइड टोटल देखो, इस साइड और इस साइड दो अरेंजमेंट्स होंगे, सेम होंगे, तो टोटल अरेंजमेंट्स का सर्कुलर में जितना भी अरेंजमेंट बनेगा उसका हाफ हो जाएगा, बिकॉज नेकलेस का जो होगा जैसा जिस कलर का, सेम कलर का बीड्स विल बी हेयर, लाइक इट इज हेयर, ग्रीन इज हेयर तो ग्रीन इज हेयर, येलो इज हेयर देन येलो इज हेयर, सिमिलर काइंड के बीड्स आते हैं, दैट्स वाई ये क्या हो जाता है, उसका हाफ हो जाता है। नाउ आई विल डू वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस। सो सी, लुक एट दिस क्वेश्चन। In how many ways can 3 men and 3 women be seated in a round table? So that first part is no restriction. There is no restriction. तो क्या करेंगे, how many persons are there, कितने लोग हैं, 6, 3 plus 3, how many, 6. 6 को अरेंजमेंट करने के how many ways are there? फर्स्ट पार्ट का आंसर इज 5 फैक्टोरियल। क्यों होगा, राउंड टेबल में बैठाना है तो क्या होगा उसमें, n-1 फैक्टोरियल। सेकेंड पार्ट, नो 2 men सिट टुगेदर। अब क्या होना है, 2 men को एक साथ नहीं बैठना है, तो फॉर दैट मैन को पहले प्लेस कर दो, 1 2 3, ये मैन को राउंड टेबल में प्लेस कर दो। देन हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर फॉर वुमेन, 3। देन मैन को अगर आपने राउंड टेबल में अरेंज किया है तो फॉर दैट राउंड टेबल में जो अरेंजमेंट होंगे वो किसके होंगे, मैन के होंगे। कितने होंगे, 2 फैक्टोरियल। इनटू वुमेन को अब बैठाओगे तो इनटू 3 फैक्टोरियल। दिस विल बी द आंसर। पहले मैन को अरेंज कर लो तो टोटल नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग मैन आर हाउ मच, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि राउंड टेबल में आपने किसको अरेंज किया है, मैन को अरेंज किया है। अब नाउ द प्लेसेस रिमेनिंग आर फॉर वुमेन, दिस इज 3 places and 3 women, 3 factorial. Now come to next part, 2 particular women sit together. अब क्या करना है, 2 women को एक साथ बैठना है, इनको एक ग्रुप बना दो। नाउ बचा 1 और बचे 3 men. All right, how many total, 1 2 3 4 5, 5 लोगों को राउंड, आई एम टॉकिंग अबाउट विच, थर्ड पार्ट, मैं थर्ड पार्ट के बारे में बात कर रही हूँ। 5 पर्सन्स को राउंड टेबल में बैठाएंगे तो हाउ मेनी टोटल वेज, 4 फैक्टोरियल इनटू इनसाइड दिस, ये जो सिट टुगेदर है ये आपस में इंटरचेंज होंगे इनटू 2 फैक्टोरियल। ऑलराइट, और नेक्स्ट और है ऑल वुमेन सिट टुगेदर। बहुत ही आसान है, ऑल वुमेन विल बी ट्रीटेड एज 1 ग्रुप। जैसे यहाँ पर 2 का ग्रुप बनाया था वैसे ही एग्जैक्टली सेम वे ऑल वुमेन विल बी ट्रीटेड एज 1 ग्रुप। 1 2 3, ये ग्रुप हो गया, 1 2 3, 1 2 3 4,
ये 4 को राउंड टेबल में अरेंज करेंगे तो क्या होगा 3 फैक्टोरियल इंटू हाउ मच, ये अंदर अरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल. दिस इज द आंसर. ऑल राइट.